So, who have spoiled my slide? No issue. Already we have done this, beta. Dr. APJ Abdul Kalam. Ma'am, Yes, good morning, students. Good morning, student. Lesson number 15. Already we have done about Dr. APJ Abdul Kalam, Ravindranath Tagore, Raja Ram Mohan Roy, and Homi Jahangir Bhabha. Beta, today is the very important day. Can anybody tell? Today is very important day in our history. It's very important day. I can give you the clue. Ma'am, I know. Yes. Ma'am, Raja Ram Mohan Rai, social reformer, मैम उनका तब बर्थ हुआ था 22/1/1774. Beta, listen. Here in your book, it is written wrong. Please do the correction. Do the correction here. Ravindranath Tagore was born on 9th May. It is wrong. It's 7th May. And today is 7th May. So it's the birthday of Gurudev Ravindranath Tagore. Today is the birthday of Gurudev Ravindranath Tagore. Please do the correction here. It's 7th May. Okay. And one more correction you have to do. Because sometimes ये printing में mistakes हो जाती हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. Do one correction here. He founded the Vishwa Bharati University in Shanti Niketan, West Bengal in 1921. All of you do the correction in your book. Every time take pen and pencil with you. Do this correction. Birth is on 7th May and Vishwa Bharati University in Shanti Niketan, West Bengal. He founded in 1921. Okay? I'm done. Very good. Now please come to this topic which we were doing yesterday about Raja Ram Mohan Roy. He was, everybody knows, yesterday I have explained it very nicely that he was a social reformer and he was known as father of modern India because better wait, then I will tell only then. In between, don't disturb the others. Okay? बेटा फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों जाना जाता है? बिकॉज उस टाइम हमारी सोसाइटी में इतनी बुराइयां थी. कौन कौन सी बुराई थी? सती सिस्टम ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यस्टरडे कि एक गर्ल को या एक उसकी जो भी जिसके हस्बैंड की डेथ होती थी उसकी वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ विलिंग और अनविलिंग जैसे भी हो उसको अपने पति की फायर के ऊपर बैठकर उसके साथ ही चलना होता था. पॉलीगैमी होती है बहुविवाह, मीन एक से ज्यादा शादियां करना, एक से ज्यादा मैरिजेस करना, 4-4, 5-5 गर्ल्स के साथ वो मैरिज कर लेते थे. दैट वाज नोन एज पॉलीगैमी. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति प्रथा की आप छोटी जात से हो, कास्ट आपकी बिलो है, आप ये काम नहीं करोगे, आप मंदिर नहीं जाओगे, आपको स्टडी करने का अधिकार नहीं है, ऐसी चीजें. चाइल्ड मैरिज, एक बच्चा जब 4-5 साल का होता था तभी उसकी मैरिज कर दी जाती थी. राइट? तो ये सब जो थी हमारी सोसाइटी में बहुत ही बुरी तरह से ये मतलब फैला हुआ था. एंड ही वाज टोटली अगेंस्ट दिस. यस, एंड फॉर दिस ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन कोलकाता 1828. उन्होंने ये किया था. ब्रह्मो समाज ने उनके साथ मिलकर लोगों को ऑर्गेनाइजेशन दी, लोगों को अवेयर किया. ठीक है. और जो राजा राम मोहन थे वो आइडल वर्शिप के भी अगेंस्ट थे, मूर्ति पूजा से. Yes, beta. Start from here. Yesterday we have led the lesson from here. Ma'am, can I speak in? Yes, yes.
नहीं, I have already told the student. Yes, beta. Ma'am, can I? No, I have assigned the duty one of the student. Yes, ma'am. Yes, beta, be louder. Good morning, ma'am. Can I? We split many religious books and philosophical books into Bengali language. He also translate Vedic scripts into English. Wait, beta. Yes, अब क्या आता है ये? He translated many religious books. पहले क्या था, जो religious books होती थी ना, वो वैदिक उसमें आती थी, संस्कृत में होती थी बहुत से लोगों को, बिकॉज उस टाइम जो पंडित लोग होते थे ओनली उनको संस्कृत आती थी, बाकी लोगों को नहीं आती थी। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर आपकी इंग्लिश के, अभी आप एसएस के बुक रीड कर रहे हो, ठीक है, दैट इज इन इंग्लिश, यू नो हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, है ना, बिकॉज आपको ये सिखाई गई है। अगर मैं ये बुक आपको उर्दू, फारसी या फ्रेंच में दे दूं, क्या आप इसको अंडरस्टैंड करोगे? नो। तो ऐसे ही उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो वैदिक स्क्रिप्ट्स को नहीं रीड कर पाती थी, बुक्स को नहीं रीड पाती थी। और जैसे अगर हमें यहाँ पर तमिल में बुक आ जाए, क्या हम रीड कर लेंगे? नो। ठीक है, तो उन्होंने उस एरिया की जो बुक्स थी उनको उन्होंने वर्क्स इनटू बंगाली लैंग्वेज, उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में उनको ट्रांसफर किया, उनको लिखा। ही वाज ट्रांसलेटेड वैदिक स्क्रिप्चर्स, क्या होती है, जो रिटन, जो भी उनके उस टाइम जो स्क्रिप्चर्स होती थी, जैसे रोड साइड लिखा होता था या किसी बिल्डिंग के अंदर लिखा होता था, दैट वाज आल्सो इन इंग्लिश। ओके, यस बेटा, स्टार्ट फ्रॉम हियर। Raja Ram Mohan Roy, yes. Established many English schools at science, technology, Western medicine, and English should be taught at Indian schools. Yes, he established many English school. उस टाइम English school कम थे क्योंकि ब्रिटिशर्स थे, बट कम थे। He wanted कि schools में साइंस, टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न मेडिसिन में डॉक्टर भी बने लोग, इंग्लिश भी हो, ठीक है, ये सब कुछ उन्होंने किया। Raja Ram Mohan Roy हमें ग्रीशा की आवाज नहीं आ रही। Ma'am, voice is not clear. Yes beta, your voice is not audible. Ma'am, voice is not clear. May I speak? नेवर। Okay, you मेरी can. बारी कभी नहीं आई। Okay, who said मेरी बारी कभी नहीं आई? Who said this? Okay, you better start. Who said मेरी बारी नहीं कभी नहीं आई? That girl, start. मैम परमीत कर। Ma'am, yes. Vidansh. Parmeet, start beta. Please don't kill my time. Don't kill the time. Raja Parmeet, start. Ram Mohan Roy was the first educated Indian to travel to England. Yes, beta. Educated Indian क्या होता है? पढ़े लिखे जो कि इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम गए. Yes, start with this beta, C.V. Raman, because we have to complete the back exercise also. Yes. One of the most well-known Indian scientists in India, C.V. Raman, was the first Indian person to win the Nobel Prize in Science for Beta. his 1930. 1930. Okay, wait. Beta, firstly, you must know C.V. Raman. What is the full form of? C.V. Raman is Chandrasekhar Venkata Raman. ओके, इनका ये फुल नेम है चंद्रशेखर वेंकटा रमन। ओके बेटा, ये वेल नोन इंडियन साइंटिस्ट थे, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला। नोबेल प्राइज क्या होता है, पहले तो ये देखो, जब कोई पर्सन मेडिसिन में, साइंस में, लिटरेचर में, म्यूजिक में, पोइट्री में, इन चीजों में एक्सेल करता है, बहुत अच्छा करता है, एक्सट्रीमली गुड करता है,
तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर वाला जो प्राइज दिया जाता है वो होता है नोबेल प्राइज। तो इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो साइंस में मिला था, बिकॉज 1930 में इन्होंने डिस्कवरी की थी चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट नोन एज रमन इफेक्ट। बेटा अगर मैं अभी आपको रमन इफेक्ट समझाऊंगी ना, आपके ऊपर से निकल जाएगा, बिकॉज इट इज इन 10th क्लास। जब आप 10th क्लास में होंगे ना, तो इसका प्रैक्टिकल आपको टीचर करके दिखाएंगे कि रमन इफेक्ट होता क्या है। एक्चुअल में ये लाइट्स आती हैं जब वो लिक्विड या सॉलिड के साथ टकराती हैं, तो उनमें भी ऐसे कुछ लाइट होती है, उस चीज के ऊपर ये बहुत डिटेल में स्टडी है, विच यू विल डू इन द क्लास ऑफ 10th। ओके बेटा, तो रमन इफेक्ट की वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला 1930 में। यस बेटा। बेटा आपको ये पर्सनैलिटीज मैंने ऐसे स्लाइड नहीं बनाई, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दीज। ओके, आपको रिकॉग्नाइजेशन भी आ सकती है एग्जाम में, सीवी रमन और ये राजा राम मोहन रॉय। ओके, यस परनीत, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। यस बेटा। The government of India also awarded him the title of Bharat Ratna in 1954. यस, भारत रत्न ऑलरेडी मैंने आपको ये तीनों चारों प्राइज के बारे में एक्सप्लेन किया था जब अब्दुल कलाम जी की बात हुई थी। तो 1954 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, अवार्ड किया गया। ओके, यस बेटा। चंद्रशेखर Raman चंद्रशेखर, was इसको born. चंद्रशेखर कहते हैं बेटा। चंद्रशेखर रमन was born in small village in तिरुचिरापल्ली in तमिल। तमिल में उनका बर्थ हुआ था, तिरुचिरापल्ली में, ठीक है, एक स्मॉल विलेज में, राइट। यस बेटा। Raman was a very bright student and finished his matriculation when he was only 12 years old. बेटा लिसन दिस केयरफुली, आप जब 15 या 16 इयर्स के होंगे ना, मैट्रिकुलेशन होती है 10th क्लास। मैट्रिकुलेशन किसको कहते हैं? 10th क्लास को। आप ये सोचो आपकी एज नियर अबाउट 10 इयर्स है, क्या आप 2 साल बाद 10th पास कर लोगे? नॉट एट ऑल। आप जब 16 इयर्स के होंगे या 15 प्लस होंगे तब आपकी 10th होगी। बट सीवी रमन जी इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने मैट्रिकुलेशन 12 इयर्स में पास की। ओके, यस, he loved physics and mathematics. His yes father was a physics teacher. he loved physics and mathematics. उनका बिगनिंग से ही टेस्ट हो गया था फिजिक्स और मैथ्स की तरफ, और रादर उनके जो फादर थे उनका जो घर का इन्वायरमेंट था वो भी क्या था? फिजिक्स का था, बिकॉज हिज फादर वाज ए फिजिक्स टीचर। ठीक है, यस बेटा पनीत। Raman attended Presidency College in Chennai. Yes, he did. He did M.Sc. No बेटा, in physics. नहीं बेटा, इसको MSc कहते हैं। इट इज MSc, मास्टर इन साइंस। ओके, जब हम मास्टर डिग्री करते हैं तो उसको MSc होती है इन फिजिक्स। उन्होंने मास्टर डिग्री किस में की थी? फिजिक्स में, 1907। यस, He did research work in the field of physics. यस, इसमें रिसर्च भी उन्होंने किया। उन्होंने खोजा कि क्या रिसर्च कर सकता हूं मैं फिजिक्स में, न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, he set up Raman Research Institute near Bengaluru. बेंगलुरु के पास उनका एक रिसर्च सेंटर भी है। He was conferred a knighthood by the British government in 1929. बेटा उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, ठीक है, कि वो इंडियंस के बहुत अंगेंस्ट थी, बट समवेयर वो जो एजुकेटेड लोग होते थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको लाइक भी करती थी, राइट।
तो सीवी रमन जी को कन्फर्ड क्या होती है, एक डेजिग्नेशन देना, नाइटहुड की उनको एक पदवी दी गई। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है ना उसके नेम के आगे सर लग जाता है, SIR सर। ओके, जिसको पर्सन को भी ये नाइटहुड की पदवी दी जाती है उसके नेम के आगे SIR सर लग जाता है, सर सीवी रमन। ये एक डेजिग्नेशन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, 1929 में उनको मिली। यस बेटा, कैरी ऑन। He was a source of इंस्पिरेशन। inspiration for many scientists. यस, जैसे आप डांसर बनना चाहते हो तो आपका भी कोई वो होगा, आइडल होगा कि मुझे इसके जैसी वो बनना है। ऐसे ही बहुत से साइंटिस्ट ऐसे थे जो कि इनके कामों से बहुत इंस्पायर होते थे, ठीक है, तो वो उनकी इंस्पिरेशन बन गए थे। अकॉर्डिंग टू हिम, According to him, scientific research needed independent thinking and hard work, not इक्विपमेंट। बेटा सीवी रमन पता है क्या कहते हैं, कहते हैं अगर आपके मन के विचार, आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, आप इतने क्रिएटिव हो कि आपको, जैसे वो कहती है ना कि हम कोई चीज उड़ रही है तो वो उसके पीछे भी लॉ बना देते हैं कि ऐसा हुआ, तो ये चीजें क्या होती हैं, आपकी थिंकिंग है, आपकी क्रिएटिविटी है। अगर आपके मन में ऐसी चीजें हैं, हार्ड वर्क है, तो आपको कुछ भी करने के लिए किसी प्रकार के इक्विपमेंट्स क्या होती है, किसी यंत्र, किसी साधन की जरूरत नहीं है। सो यू मस्ट हैव दैट टेस्ट। ओके, आपकी वो क्रिएटिव स्किल्स कभी मरनी नहीं चाहिए, राइट। His advice to the young scientist is look at the world around you. चारों तरफ अपनी दुनिया को देखो, do not limit yourself. आप सिर्फ ये मत सोचो कि मेरे घर में हम 4 पर्सन हैं और मैं सबसे आगे हूं, नहीं, आपको पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन करना है। ओके, अपनी रिसर्च करनी है। अगर रिसर्च का मतलब ये नहीं कि ओनली लैबोरेटरीज में जाकर, लेबोरेटरीज पता है ना जो लैब्स होती हैं, हम सिर्फ उनमें जाकर रिसर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, अगर आप बहुत क्रिएटिव हो, आपके पास डिटर्मिनेशन है, तो आप वो रिसर्च कहीं भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, डू यू नो सीवी रमन यूज्ड इक्विपमेंट वर्थ ओनली ₹200। नो डाउट उस टाइम 2000 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी, ठीक है। टू मेक दिस डिस्कवरी कॉल्ड रमन इफेक्ट, सो उन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए 200 रुपीज स्पेंड किए। टुडे द रमन इफेक्ट is examined with the help of costly equipment worth millions of rupees। आजकल रमन इफेक्ट को एग्जामिन करने के लिए, चेक करने के लिए लोग मिलियंस रुपीस को खर्च करते हैं। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि ये होता क्या है। नोबेल प्राइज बेटा मोस्ट प्रेस्टिजियस, सबसे जिसको कहती है ना कि इम्पोर्टेंट, वेट बेटा मेरे घर में लाइट चली गई है, लेट मी स्विच ऑन द लाइट। बेटा नोबेल प्राइज क्या होता है बेटा, प्रेस्टिजियस होता है, हैविंग हाई स्टेटस। Nobel Prize is the most prestigious international prize awarded for outstanding achievements in the fields of physics, chemistry, medicine, literature and peace। बेटा जो लोग इन फील्ड्स में सबसे अच्छा काम करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, उन लोगों को ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल प्राइज है, तो उन लोगों को क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। आपको पता है द फर्स्ट नोबेल प्राइज वर अवॉर्डेड इन 1901। सबसे पहला जो प्राइज मिला था नोबेल प्राइज 1901 में हेनरी डुनांट को मिला था। किस चीज के लिए? ही वॉज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस कमेटी। क्लियर? यस, वेट, आई एम गोइंग टू स्टॉप माय स्क्रीन। Yes, beta.
Now please come to the back exercise. Shall we solve? Take your pen pencil with you. Yes, Arshdeep has written like Mother Teresa. Mother Teresa को Peace Prize मिला था, Nobel Peace Prize. ठीक है? Very good, beta. Yes, open your book. Open your book, beta. We have to use pen or pencil. You are in 5th class. If you are confident कि आपके spelling कोई error नहीं हो सकता, then use pen. Okay? अगर आपको लगता है कि मैम की आंसर की को अभी आपने वेट करके कंपेयर करना है, then you can use pencil. This is your wish. So first is Dash is a scientist who also served as the 11th president of India. इसका मतलब क्या बेटा? एक ऐसा साइंटिस्ट जो इंडिया का 11th प्रेसिडेंट भी बने. कौन है? Very good. Write in chat box. Very good. I like this. Excuse me, ma'am. Very good. Answer is APJ Abdul Kalam. बेटा उनका आधा नाम नहीं लेना कभी भी. अगर आप उनको प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, then please write down full name. APJ Abdul Kalam. Yes, who wants to ask? मैम मैंने ना मैम पुरानी बुक ली है मैम किसी की मैम तो उसने मैम किया हुआ है मैम बैक एक्सरसाइज. Beta, every time you asked me and every time I already allowed you, there is no issue. अगर किया हुआ है, then try to listen. Okay. Next is second question. Turn your page. Rabindranath Tagore was awarded Nobel Prize for Literature for his book. रविंद्रनाथ टैगोर को अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज उनके लिटरेचर के लिए. Which book was that? Write down. Please check the correct spelling in the chat box. Write down correct spelling. Yes, I'm going to speak. सबसे पहले लिखो गीता. GITA. गीता. अंजलि. ANJALI. Beta, if spellings are tough, so you can break this way. Okay? Parmeet Kaur, don't write answers, beta, this way. I know you have book of previous student. Gitanjali. 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 Next, number 3 is Rabindranath Tagore is famous for his dash संगीत. मैंने आपको बोला था ना उनका एक अलग संगीत था जिसमें क्लासिक, कर्नाटिक एंड वेस्टर्न तीनों का फ्यूजन था. एंड नेम वाज रविंद्र. Name was Ravindra. Beta, spelling wrong. Wrong spellings. Few students are writing. Yes, write down the answer. I'm going to speak. RABINDRA. RABINDRA. Ravindra Sangeet. Next, number 4. Dash is the most prestigious international prize award for outstanding achievements in the field of physics, chemistry, medicine, literature, and peace. Already मैम ने आपको बहुत अच्छे से किया है. It's Nobel Prize. NOBEL. बेटा अगर आप ई को पीछे लिखेंगे ना उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. NOBEL. Again, Sahajpreet, writing wrong. NOBEL, Nobel Prize. Clear? Number 5.
Bhava Atomic Research Center was named after Homi Jahangir Bhava. Please, you have to start with capital letter, okay? Homi, H-O-M-I, Homi. Jahangir, J capital, JahanGir. अब देखो लक्ष्य अरोड़ा जहांगीरी लिखा हुआ है, वेरी बैड बेटा. राइट द करेक्ट स्पेलिंग. JAHANGIR, जहांगीर भावा. PHAVHA, भावा. Done. Next, sixth question. C.V. Raman did research work in the field of, yes, write down in chat box. C.V. Raman did research work in the field of physics. One part is written physical. Write down the correct spelling. Very good. PHYSICS. 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 Number 7. अभी मैम ने आपको बताया था कि उनको एक डेजिग्नेशन मिलती थी सर की उपाधि, तो उसको कहते हैं कन्फर्ड नाइटहुड. ठीक है, जो उपाधि दी जाती थी ब्रिटिशर्स की तरफ से. नंबर 7. रामन वॉज कन्फर्ड नाइटहुड. KNIGHT. के साइलेंट है बेटा, इसलिए ये नाइटहुड कहते हैं इसको. K silent, HOOD, hood. KNIGH. Knighthood. Yes. Next is number 8. Raja Ram Mohan Roy was the founder of Dash at Kolkata. किस चीज के फाउंडर थे वो? ब्रह्मो समाज. Yes. B capital. BRAHMO. B, only B capital बेटा, not all. प्लीज चैट बॉक्स में भी वैसा ही लिखो ना, आप समझ नहीं होती समाज. ब्रह्मो, BRAHMO. ब्रह्मो समाज, SAMAJ. समाज एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई थी जिसका नेम ब्रह्मो समाज रखा. नेक्स्ट इज, Please repeat the spelling of Samaj. ओके बेटा, SAMAJ. Excuse me, ma'am. Yes dear. What is the meaning of influential family? What? Influential family. प्रभावशाली, बहुत बहुत अच्छी, वेल ऑफ, renowned family. Okay. Next बेटा, match the following. एक्सक्यूज मी मैम. Yes बच्चा. मैम आपने मैम दो चीजें मैम करेक्शन करने के लिए कहा था मैम. एक तो मैम वो मैम डेट ऑफ बर्थ, और मैम दूसरा आपने क्या कहा था? हाँ, मैम एक तो यस, और रविंद्रनाथ मैम टैगोर आपने जी का दूसरा बर्थ आज है, और एक विश्व भारती जो है वो 1921 में ओपन हुई थी. ओके, आपकी बुक में ओके दोनों मैम. चीजें रॉन्ग मेंशन है बच्चा. ओके मैम, थैंक्स. Arman Jo, you send your notebook very late for checking. Next time be in Sorry, regular. ma'am. Okay bacha, be in time. Otherwise Okay ma'am, sorry. your work is very good. I appreciate you. Your handwriting is Sorry so ma'am. good. Okay bacha. Match the following. Beta, write down number 1, 2, 3, 4, 5 in peach box, in front of peach box. Okay.
Write down the numbers. Done? So, number 1 is Homi Jahangir Bhabha. I'm going to speak the answer. बिल्कुल नीचे वाले बॉक्स में है वो. Father of Indian Nuclear Program. परमाणु ऊर्जा, ठीक है? Father of Indian Nuclear Program. Number 1. So, number 2 is APJ Abdul Kalam. Be quick, time is only 1 minute is left. APJ Abdul Kalam, ex-president and eminent scientist. सबसे टॉप पर है. Number 2. Number 3, Raja Ram Mohan Roy, father of modern India. Last second number, check करो. Father of modern India. Number 4, C.V. Raman, Nobel laureate in science. Laureate का मतलब होता है a person who is honored with an award for outstanding achievement. ओके जिसको बहुत आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए अवार्ड ऑनर्ड किया जाता है. तो वो कौन थे? सीवी रमन. नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल लॉरिएट इन लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा योगदान था. सो आंसर धैर्य शर्मा हैज रिटन इन द चैट बॉक्स 24531. इट इज करेक्ट. बेटा लिसन केयरफुली. Today our syllabus has finished of PT1. Okay. On next Wednesday, we will start our revision work. We will learn each and everything in the class. But beforehand, your notebooks, your book,